નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરવાની છે કોરોના કાળમાં જે કરપ્શન જોવા મળી રહ્યું છે તેની. કોરોના કાળમાં આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છે કે આપણી માટે ઘણી એવી વસ્તુઓ ખૂબ જ જરૂરિયાતવાળી બની ગઈ છે, એટલે કે જે સેનિટાઈઝર છે, માસ્ક છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અલગ બાબત છે, પરંતુ જો વસ્તુની વાત કરવામાં આવે તો સેનિટાઈઝર અને માસ્ક અત્યારે આપણી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ બની ગઈ છે કે જેના વગર હાલમાં અત્યારે આપણે બહાર નથી નીકળી શકતા. દરેક લોકો તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આપણે હંમેશાથી જોઈએ છીએ કે જે વસ્તુનો ઉપયોગ વધે છે એમાં વ્યાપાર પણ વધી જતો જોવા મળતો હોય છે. તો એવી જ રીતે માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનો વ્યાપાર પણ ખૂબ ધમધમતો જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે એમાં ભ્રષ્ટાચાર પણ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. જે પ્રકારે જાણકારી મળી રહી છે, સરકારી હોસ્પિટલમાં જે સેનિટાઈઝર છે તે હલકી કક્ષાના સામે આવ્યા છે, જેમાં આલ્કોહોલનું જે પ્રમાણ છે ખૂબ ઓછું જોવા મળી રહ્યું છે. મેડિકલ ક્ષેત્રે ઘણો ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળી રહ્યું છે. સેનિટાઈઝરના 133 સેમ્પલ તપાસવામાં આવ્યા કે જેમાં 133માંથી 80 ફેલ જોવા મળ્યા છે, એટલે કે હલકી ગુણવત્તાના જોવા મળ્યા છે. સરકારી હોસ્પિટલ માટે ખરીદવામાં આવેલી જે દવાઓ છે તે દવાઓ પણ ખૂબ જ હલકી ગુણવત્તાની જોવા મળી છે. અને ક્યાંક કહી શકાય છે કે કોરોનાની આ મહામારીમાં લોકોના જીવ સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે લોકો પોતાની રીતે પોતાને સેફ રાખવા માટે અત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોનાથી બચવા માટે આપણે માત્ર માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ જ વસ્તુ આપણને બચાવી શકે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો જે વિશ્વાસ કરીને ખરીદી રહ્યા છે તેમની પાસે હલકી ગુણવત્તાના માસ્ક અને સેનિટાઈઝર પહોંચી રહ્યા છે, હલકી ગુણવત્તાની દવાઓ પહોંચી રહ્યા છે, એટલે ક્યાં કહી શકાય છે કે લોકોના જીવ સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે. કદાચ એ પણ કહી શકીએ કે એટલા જ માટે જે કેસો વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. એન્ટાસિડ લિક્વિડ બોટલ સિરીઝ, સર્જરીમાં વપરાતા કોટન, આ બધા જ એટલે કહી શકાય છે એમાંથી ઘણા બધા અનેક એવા બંચીસ છે કે જે ફેલ હોવાની ચર્ચા થઈ રહી છે. અને તેની સાથે જ જે ઘણી બધી જગ્યા આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છે કે ડોક્ટર્સ પાસે પીપીઈ કિટનો પણ અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે આપણે વાત એ કરવાની છે કે આપણે જે માસ્ક વાપરી રહ્યા છે કે જે અત્યારે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, કેવા પ્રકારના માસ્ક વાપરવા જોઈએ, તમે કેવી રીતે તપાસ કરી શકો છો કે તમે જે માસ્ક વાપરી રહ્યા છો એ ખરેખર સારી ગુણવત્તાના છે. તમે જે સેનિટાઈઝર વાપરી રહ્યા છો એનો ઉપયોગ તમે કેટલું કરી શકો છો. ક્યાં ઘણી બધી વખત આપણે એ પણ સાંભળી રહ્યા છે કે સેનિટાઈઝરનો જો વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ પણ નુકસાનકારક છે. તો સેનિટાઈઝર લેતી વખતે પણ આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે ને લેબમાં જ્યારે આ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે કેટલી હલકી ગુણવત્તાના માસ્ક અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે, તમે કેવી રીતે સાવધાન રહી શકો છો, તમામ મુદ્દાઓ પર આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. જેની માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ચીફ જનરલ મેનેજર અને લેબ ડાયરેક્ટર ઓફ CERC आनंदिता मेहता जी. आनंदिता जी, आपका स्वागत है. वेलकम टू करंट टॉपिक. जी आनंदिता जी, सबसे पहला सवाल कि अभी जो मैंने बात की कि जिस तरह हल्की गुणवत्ता के पाए गए हैं, सबसे पहले कि आपके हिसाब से कि कितनी आप किए जा रहे हैं और कितनी हल्की गुणवत्ता के मास्क मिल रहे हैं. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मास्क और सैनिटाइजर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे सभी के लिए, कोविड से बचने के लिए। और जी. इस लॉकडाउन के दरमियान हमारा जो CERC का हेल्पलाइन है वो सतत चालू था, और हमें उसमें काफी सारे कंप्लेंट्स मिल रहे थे कि जो भी सैनिटाइजर्स केमिस्ट बेच रहे हैं वो काफी 3 गुने भाव में बेच रहे थे। मास्क भी उसी तरह से, जैसे 75 रुपीज का मास्क है या 65 रुपीज का, वो 200 रुपया 300 रुपया इस तरह से बेच रहे थे। तो हमने हमारे हेल्पलाइन के द्वारा उस वक्त लॉकडाउन के वक्त भी केमिस्ट शॉप से बात करके और इस पे कार्यवाही की थी। तो आपने अभी जैसे बताया कि जैसे कि डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई इतना नहीं है, तो हल्के गुणवत्ता वाले भी सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं, जिसमें कि अभी अभी जो आपने रिपोर्ट बताया उसमें 133 में से 80 में अल्कोहल की कंटेंट जितनी होनी चाहिए उससे काफी कम पाई गई है। तो उससे इसकी इफेक्टिवनेस, जो इसकी काम करने की शक्ति है, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। उसी तरह से
लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि किस तरह के सैनिटाइजर यूज करें, कितना यूज करें, कब तक यूज करें, किस तरह के मास्क यूज करें, क्योंकि जी। बाजार में एक्चुअली मेनली 3 तरह के मास्क मिलते हैं और मिल हाँ रहे जी। हैं। एक है क्लॉथ मास्क, कपड़े की बनी हुई मास्क जो रीयूजेबल होती है, और पर काफी बार ये भी देखा गया है कि ये जो कपड़े की मास्क है वो बहुत पतले कपड़े से बना होता है। आइडियली ये 2 लेयर कपड़ा से बना होना चाहिए, या तो 180 इसका थ्रेड काउंट होना चाहिए, मिनिमम 180 थ्रेड काउंट, और डबल लेयर होना चाहिए। तो जो जी। बाजार में मिलता है वो सिंगल लेयर का मिलता है। तो हाँ जी। तो इस पे भी ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए। सिमिलरली ये जो 2 और टाइप के मास्क मिल रहे हैं, एक मेडिकल या सर्जिकल मास्क कहा जाता है, जो 3 लेयर वाली मास्क होती है। तो उसमें जो ऊपर वाला लेयर है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, बीच वाला लेयर फिल्ट्रेशन के लिए होता है, और तीसरा लेयर होता है वो वाटर रिपेलेंट होता है। तो इस तरह से ये 3 लेयर, और तीसरा जो मास्क है वो N95 जिसको कहते हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, इनके लिए स्पेशली यूज। तो लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि जो आम जनता है, आम कंज्यूमर्स है, उनको किस तरह के मास्क और किस तरह के सैनिटाइजर्स मिलने चाहिए जी। और इस्तेमाल करनी चाहिए, और उनके इस्तेमाल में भी उनको काफी सारा कंफ्यूजन है। तो उस पे भी हम आगे बात करना चाहेंगे। जी और जी जैसे आनंदिता कि जी, आपने अभी लेकिन बताया, आनंदिता जी, कंप्लेंट्स क्या हाँ मिल जी, रही है? जैसा कि हमने पाया गया है, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि हम्म, सैनिटाइजर के 133 सैंपलों का टेस्ट हुआ, उसमें से 80 हम्म, फेल हुए हैं। मतलब सैनिटाइजर की जो गुणवत्ता है वो क्या होनी चाहिए, और ये जो मास्क की भी बात की जाए तो वो भी जो अच्छी गुणवत्ता के नहीं पाए जा रहे हैं, तो वो हम कैसे जान सकते हैं? और ये एक तरह से हम करप्शन ही कह सकते हैं। हाँ जी, हम जो यहाँ पे हेल्पलाइन में जिस तरह के कंप्लेंट्स हमें मिले हैं, वो ओवर प्राइसिंग की कंप्लेंट्स हमें ज्यादा मिले हैं, क्योंकि एज अ कंज्यूमर, नहीं, एज अ लेकिन कॉमन पर्सन, अभी इसमें तो काफी चेंजेस मिला है आनंदिता जी। अभी ओवर प्राइसिंग हाँ, मास्क या नहीं, सैनिटाइजर को लेके इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें नहीं एक नहीं हो रहा कंट्रोल। है। हाँ, हाँ। आपकी बात सही है। तो अभी जो है वो ये जो सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं, और एक कंपनी ने जो गुजरात गवर्नमेंट को सप्लाई किया है, उसमें काफी कम गुणवत्ता वाला, मतलब लेस अल्कोहल कंटेंट वाला जो सैनिटाइजर है। तो पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि फॉर अ कॉमन कंज्यूमर घर पे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको ये जी। अल्कोहल कंटेंट पता नहीं चलेगा। ये तो एफडीए वालों ने सैंपल्स लिए हैं, और 133 सैंपल्स में से 80 सैंपल्स जो फेल आए हैं, जिसमें अल्कोहल की कंटेंट कम है, तो ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है। तो मैं ये प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ये लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम चला है, पर ये कॉमन कंज्यूमर के पास ये उपाय नहीं है कि वो खुद जान सके कि इसमें कम गुणवत्ता वाली कौन सी है। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे कि सैनिटाइजर का जो यूज है, या ओवर यूज जो कर रहे हैं लोग आजकल, हाँ वही जी। हमें बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें जो प्रॉपर जो केमिस्ट शॉप से, ऑथराइज केमिस्ट शॉप से, वहां से सैनिटाइजर्स लेना चाहिए, पक्का बिल लेना चाहिए, और जो ब्रांडेड अच्छे वाले हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सैनिटाइजर्स की यूज ज्यादा मात्रा में नहीं करने चाहिए, उसमें काफी सारा प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, जरूर से। हाँ, जो अगर आपके हाथ ऑलरेडी चिकने हैं और गंदे हैं, तो उसपे सैनिटाइजर बिल्कुल काम नहीं करेगा, उल्टा हानि पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें जर्म्स या बैक्टीरिया, वायरस और ग्रीस में, मतलब चिकनापन में और ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए सोप एंड वाटर, साबुन और पानी ही ज्यादा कार्यकारी है, नंबर 1। नंबर 2, ये ओवर यूज जो कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो है, तो वो हमारे सारी आर्द्रता, सारी जो मॉइस्चर है स्किन की, वो खत्म कर देती है। आप देखेंगे कि जो लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनके हाथ पे एक सफेद परत पड़ रही है, स्किन बहुत ड्राई हो रहा है। इसलिए ये एक और दूसरी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास हाथ के सामने, मतलब आपके रीच के बाहर है, पानी या साबुन आपके पास में नहीं है, तो आप जरूर यूज जी। करें, लेकिन सैनिटाइजर की ओवर यूज ना करें। तीसरी बात कि
जिस सैनिटाइजर्स में अल्कोहल नहीं है उस सैनिटाइजर्स में ट्राइक्लोसान नाम की एक केमिकल होती है जो कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स में भी ये केमिकल पाया जाता है, और इस केमिकल से थायराइड फंक्शन हमारे में उसकी इफेक्ट आती है, हमारे थायराइड फंक्शंस और हमारे मसल्स और लिवर में ट्राइक्लोसान की खराब ओवर इफेक्ट होती यूज कर है। रहे हैं सैनिटाइजर का, ओवर यूज से ओवर यूज, स्पेशली फिर बच्चे अगर इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उनकी जो एक इनेट इम्यूनिटी होती है वही घट जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं कि उनकी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिशोधक क्षमता जो है वो घटती हुई नजर आती है। अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है उनको। चौथी बात कि ये सैनिटाइजर्स किचन में या जहाँ पे आग या लगने की संभावना है तो वहां पे इसको स्प्रे ना करें, क्योंकि इससे तुरंत स्पार्क होके और आग लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। या क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो, जैसे कि गाड़ी के अंदर आपने अगर सैनिटाइजर का बॉटल जो लीक हो रहा है वो रख दिया हो तो उससे वेपर्स निकलते हैं, तो वो वेपर्स जो है वो एक फैल जाता है और थोड़ा भी स्पार्क होता है तो वहां पे आग लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, पॉसिबिलिटीज रहती है जी। पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इस तरह से सैनिटाइजर्स का यूज तभी करना चाहिए जब आपके पास सोप, साबुन और पानी अवेलेबल नहीं हो। आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि आप बार बार अपना हाथ साबुन और पानी से धोएं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेकिन है। कोई अनंता भी जी वो साबुन, इतना पॉसिबल हाँ, नहीं हो पाता है, जो लोग ऑफिस में मतलब बाहर निकलते हैं काम करते हैं तो वो इतना पॉसिबल हाँ नहीं जी, हो पाता है कि वो नहीं, हर बार वो सोप से पॉसिबल हाथ हर धो बार नहीं हो पाता है, तो पाए। आप सैनिटाइजर का उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास सोप या पानी आपके पास मौजूद ना हो। तो एक ही बात बताऊंगी कि आप खुद तो टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मतलब जो रजिस्टर्ड केमिस्ट शॉप्स है, जो अच्छी वाली कंपनीज के सैनिटाइजर्स हैं, उसमें आप अल्कोहल कंटेंट वगैरह पीछे लेबलिंग में लिखा होता है तो वो देख के लीजिए और बिल लेने की आग्रह जरूर रखिए। और एटलीस्ट जो लेबल्स, जैसे ये पीछे लेबल्स वगैरह लिखा होता है वहां हाँ पे जी जी। उसका कंटेंट एक बार आप देख लो कि कितना परसेंट अल्कोहल है कि नहीं, उसके डायरेक्शंस ऑफ यूज क्या है, उसमें ट्राइक्लोसान नाम की एंटीबैक्टीरियल है जो है लेकिन वो अभी है। अनंदिता जी उसी में तो करप्शन देखने में मिल रहा है, जितना वहां लेबल पर लगा हुआ हो उतना परसेंटेज अंदर अल्कोहल पाया नहीं जा रहा है, यही तो करप्शन देखने मिल रहा है। तो इसका अभी इसका उपाय तो प्रशासन को या गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करनी पड़ेगी, उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी। अब एज अ कंज्यूमर हम यही कर सकते हैं कि ब्रांडेड रजिस्टर्ड केमिस्ट शॉप से खरीदें और उसका डायरेक्शंस ऑफ यूज पढ़ें और उसकी कंटेंट वगैरह देखे और बिल लेने की आग्रह रखें। और जहां तक हो सके वहां तक सोप और पानी से हाथ धोने की आग्रह रखें। और जी। कहीं भी मतलब अगर आप इफ यू कम अक्रॉस, मतलब आपको इस तरह के डुप्लीकेट या कम गुणवत्ता वाली वस्तु मिली हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर फोन करें और वी विल टेक अप द मैटर। और इस तरह से ही आप कर सकते हैं। अनिंदिता जी लोग इतने सजाग देखने मिलते हैं कि आपको दिन में कॉल्स आते हैं, एक दिन में लगभग कितने कॉल्स आ जाते हैं लोगों की कंप्लेंट्स के, कि लोग इतने सजाग हैं कि उन्हें गलत चीज पहुंच रही है। अगर सैनिटाइजर की बात करें, मास्क की बात करें, तो इससे पता चलता है लोग कितने यहाँ पर केयरफुल हैं। तो लोगों की कंप्लेंट्स आती है आपको? हमें आती है कंप्लेंट्स, लेकिन जैसा कि मैंने बताया लोगों में जागरूकता नहीं है, उनको पता नहीं है कि सही क्या है। तो इसलिए वो उनको जो मिल जाता है वो उसी से, ये तो प्रशासन ने सैंपलिंग किया और कलेक्ट किया नहीं अनिता जी 133 मतलब अभी सैंपल। तो ऐसा है कि लोग सैनिटाइजर में भी ये ढूंढते हैं कि कहीं कम पैसे का सैनिटाइजर मिल जाए, लोग बिजनेस करने का सोच रहे हैं। और मास्क में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि घर पे हम मास्क बना लें, कलरफुल मास्क, अपनी अपनी तरह से फैशनेबल मास्क लोगों को पहनना है, लेकिन मैं ऐसे आपको लोगों को कैसे हम एक बात समझाएं? मैं
एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो घर पे मास्क बना रहे हैं दैट इज फाइन, वो अच्छी मतलब लेकिन यही है कि लेकिन टू डबल लेयर लेयर्ड मास्क होना होना चाहिए, चाहिए। टू हाँ। लेयर। मतलब वो घर पे जो मास्क बना रहे हैं एक्चुअली वही यूजफुल है, लेकिन वो टू लेयर मास्क होना चाहिए लेकिन और ये बात है कि वो क्लॉथिंग यानी रियूजेबल कपड़े है। के मास्क पहनना सही है, क्योंकि काफी लोग ये हाँ, मतलब लोगों के मन यस में ये यस भी है यस, कि हमें लोगों के मन में ये है। बाजार में मास्क मिल रहे वही यूज करने से हम सेफ हैं, और नहीं काफी लोग नहीं कपड़े के नहीं, मास्क भी यूज कर रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ कि कपड़े का जो मास्क है वो बहुत ही यूजफुल है अनलेस अनटिल इट इज टू लेयर्ड मास्क। और ये इनफैक्ट हमारे पर्यावरण के लिए भी बेटर है क्योंकि ये रियूजेबल है, हम इसको अच्छी तरह से धो सकते हैं। और क्योंकि काफी लोग ये देखा गया है कि ये जो डिस्पोजेबल मास्क है, बाकी के दो टाइप के मास्क के बारे में मैंने बात किया, जो सर्जिकल मास्क है, मेडिकल मास्क है और N95 मास्क है, उसे भी लोग धो के यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। वो लोग उसको सैनिटाइजर में डुबा के धो रहे हैं या धो के दूसरे दिन यूज कर रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। उससे मतलब बिल्कुल भी ये सही बात नहीं है। तो जो कपड़े का जो मास्क अगर डबल लेयर बना के पहन रहे हैं तो वो रियूजेबल भी है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और और ये जो मास्क बाहर से मिल रहे हैं नंदिता जी, उन्हें हम कितनी हाँ, बार यूज कर सकते हैं? लोग वही एक मास्क एग्जैक्टली को काफी टाइम चलाते हैं, तो ये वो जो भी कहीं ना कहीं ये जो बाहर से हानिकारक मास्क है। हम, हाँ, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है क्योंकि ये जो मास्क जो हम अमूल पार्लर्स में मिल रहा है वो दो टाइप के मिल रहे हैं। एक 5 रुपए का मिल रहा है जो मेडिकल या सर्जिकल 3 लेयर्ड मास्क है, जिसे सिर्फ 6 से 8 घंटे ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा उसको यूज करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल टू यूज इट फॉर मोर देन, मतलब 6 से 8 घंटे के ज्यादा उससे यूज नहीं करना चाहिए। और जो N95 मास्क है वो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर्स या जो लोग कोविड पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हो या जिनको सर्दी खांसी जुकाम खुद को हुआ हो, इन्फेक्टेड हो या सस्पेक्टेड केस हो, तो सिर्फ उन लोगों को ही N95 मास्क या सर्जिकल मास्क यूज करना चाहिए। और उसको डिस्पोजल का भी एक उसको फेंकने का भी, जहां तहां अगर वो लोग जी। ये फेंक देते हैं ओपन और ये देखने मिल कूड़ेदानी भी में। रहा है, ये काफी सारे ऐसे न्यूज हमने देखे कि कहीं हॉस्पिटल्स हाँ, के बाहर, तो कहीं जहां पर कोविड पेशेंट्स है वहां पर भी जो मास्क है वो बाहर पड़े हुए पाए जा रहे हैं। जो हम्म, आसपास के लोग हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर वो यूज्ड किए हुए मास्क पड़े हैं। हाँ जी। तो ये जो हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है कि जो N95 मास्क है हॉस्पिटल जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट जो कलेक्शन है, येलो कलर का बिन अलग आता है, उसमें ये मास्क फेंकना चाहिए और वो भी अच्छी तरह से रैप करके उसको और कवर्ड किसी प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग में या क्लॉथ या कागज के बैग में रैप करके और तभी आप फेंक सकते हैं। अदरवाइज इट इज ये जो मतलब ये अलग सेग्रीगेटेड येलो बिन्स जो हैं, जो जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट जिसमें डाले जाते हैं, जो हॉस्पिटल के जो वेस्ट डाले जाते हैं उसमें इस तरह के मास्क डालने चाहिए। तो जी जी। जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि कॉमन कंज्यूमर्स के लिए जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं या जिनके घर पे कोविड पेशेंट्स नहीं है या जो कोविड पेशेंट्स की देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लॉथ मास्क जो रियूजेबल है, घर पे बन सकता है, डबल लेयर क्लॉथ मास्क, वो 80% फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वो 80% इफेक्टिव है और उनके लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, वो लोग ये मेडिकल जो 5 रुपए वाली मास्क और N95 मास्क वो लोग रीयूज कर रहे हैं, उसको सैनिटाइजर में धो रहे हैं और 2 या 3 दिन तक लगातार पहन रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो उनके लिए जी। ये मेडिकल मास्क या N95 मास्क बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो कोविड पेशेंट्स की केयर अगर कर रहे जो हैं लोग N95 या मास्क यूज भी करते हैं तो उन्हें भी 2 दिन में N95 मास्क चेंज करना चाहिए नंदिता जी। नहीं, N95 मास्क भी 10 आवर्स से ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, 10 घंटे एग्जैक्टली ही इसलिए हाँ, क्लोथिंग मास्क ही सबसे बेस्ट है। बात करें एग्जैक्टली सैनिटाइजर की, तो अनंतिता जी ये भी जानने मिला है कि सैनिटाइजर से कुछ दिन पहले ऐसे भी न्यूज आ रहे थे कि ज्यादा सैनिटाइजर का उपयोग करने से कैंसर होने की संभावनाएं भी हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सैनिटाइजर्स हैं, इसमें या तो दो टाइप के सैनिटाइजर्स होते हैं, या तो अल्कोहल बेस्ड होते हैं जिसमें काफी हाई मात्रा में अल्कोहल होता है, और दूसरे जो जिसमें अल्कोहल नहीं होता है उसमें काफी सारे केमिकल्स, जिसमें से एक केमिकल बहुत ही खतरनाक है, ट्राइक्लोसैन नाम है। आप उसको पीछे उसके देख सकते हैं कि उसमें ट्राइक्लोसैन है कि नहीं। तो ये ट्राइक्लोसैन जो है उससे उससे थायराइड फंक्शंस में इफेक्ट हो सकता है, उससे लिवर की डैमेज हो सकती है, और मसल्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये ट्राइक्लोसैन है जो पेस्टिसाइड, मतलब जो कीटनाशक अपने हम खेत में डालते हैं उसमें ट्राइक्लोसैन होता है। वो एक बहुत ही पोटेंट एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, वो बैक्टीरिया पे ज्यादा काम करता है ट्राइक्लोसैन, और वो हमारे शरीर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन के जरिए हमारे शरीर में चला जाता है, और हमारे थायराइड फंक्शन और लिवर फंक्शन और मसल्स पे उसकी इफेक्ट होती है। ये जो सैनिटाइजर्स में आपने देखा होगा बहुत खुशबूदार होती है, उसमें सेंट बहुत सारे होते हैं। हाँ तो जी ये जो जी जी। फ्रेग्रेंस और जो ये जो खुशबू डालते हैं, तो उसमें थैलेट्स करके एक केमिकल आता है जो हमारे बॉडी के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकता है। एंडोक्राइन डिसरप्टर कहते हैं उसको, जो हमारे बॉडी का जो हार्मोन्स हैं उसमें चेंजेस ला सकता है और कैंसर तक उससे हो सकता है। तो ये जो सैनिटाइजर्स है उसमें बहुत तरह के केमिकल्स, फ्रेग्रेंस, सेंट, उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए ट्राइक्लोसैन, इस तरह के काफी सारे केमिकल्स के मिक्सचर्स इसमें आते हैं। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि सैनिटाइजर्स आप जरूर यूज करें, जहां पानी या सोप आपको अवेलेबल नहीं है वहां पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक इफ यू आपके आसपास लेकिन अनन्विता जी, कोई मेडिकल हाँ जी। सर्टिफाइड कोई सैनिटाइजर है जो, जैसा कि लोग अभी फ्रेग्रेंस और ये अलग अलग तरह के सैनिटाइजर आ रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, इसमें भी अभी एक कंपटीशन है कि सैनिटाइजर कौन सा यूज करे कौन सा ना करे। कोई मेडिकली सर्टिफाइड सैनिटाइजर है जिसमें जिससे हम थोड़ा कह सकते हैं कि ऐसा कोई डर ना हो, क्योंकि ओवर यूज में तो डर है ही, लेकिन फिर भी अगर कोई मेडिकली सर्टिफाइड हो सैनिटाइजर तो हम लोगों को बता सकें। नहीं, एक्चुअली मोस्टली जो रजिस्टर्ड केमिस्ट शॉप्स में मिलते हैं वो सर्टिफाइड ही आते हैं, तभी वो लोग बेच सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट। लेकिन लोगों में जागरूकता यही फैलाना चाहिए कि ओवर यूज नहीं करना चाहिए, जहां बिल्कुल जरूरत अभी हो टेस्टिंग वहीं पे कितनी सैनिटाइजर आप यूज करें। नहीं अनन्विता जी, क्योंकि टेस्ट कितना हो रहा है, टेस्टिंग कितनी जरूरी है? चलो लोगों में जागरूकता नहीं है हम मान सकते हैं, टेस्टिंग तो लेकिन टेस्टिंग तो कितना हो बहुत रहा ही है? जरूरी है, और स्पेशली जब हमें ये इतने सारे सैंपल्स फेल मिले हैं ऑलरेडी, 133 में से 80 सैंपल्स फेल मिले हैं। उनके उनके तो उनके उनके विरोध में एक्शन लेना भी कितना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। अभी लोगों के लिए जीवन जरूरियात बिल्कुल की ये बिल्कुल बहुत महत्व तो की चीजें हैं। हाँ, तो टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, मार्केट सैंपल्स पिकअप करने चाहिए तंत्र को, और उसकी आगे टेस्टिंग होनी चाहिए, और या लोग साथ मिलके PIL भी कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकते हैं कि भाई इससे जिन लोगों को हानि पहुंचा है या व्हाटएवर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तंत्र को ज्यादा इस बात की काळजी लेनी चाहिए कि ज्यादा और से ज्यादा सैंपल्स लोग टेस्ट तो हो। PIL कर ही सकते हैं, लेकिन जहां चेकिंग हो रहा है वहां पर अगर गलत पाया जाता है तभी उनके विरोध में एक्शन जरूरी बन गया है। हाँ, एक्चुअली आपने जैसे बताया कि ये जो FDA ने ये सैंपल्स लिए हैं और टेस्ट किए हैं, तो हमारे मिस्टर कोशिया हैं जो कमिश्नर है, उन्होंने बोला है कि हाँ, सो उन्होंने बताया है कि उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जा रहा है। या जी 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 जरूर से। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ लोगों की जान की बात है, कहीं एक मास्क एक सैनिटाइजर की छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि अभी वो लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोग इसके उपयोग के बिना अभी रह नहीं सकते, तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये कह सकते हैं लोगों की जान जा सकती है। अभी समय यहाँ समाप्त हुआ है। अनन्विता जी आप हमारे साथ जुड़े और ये बहुत ही सही जो डिटेल से लोगों तक आपने पहुंचाई, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
તો દર્શક મિત્રો આજે વાત કરીએ આપણે છીએ કે કોરોના કાળમાં કરપ્શન જોવા મળી રહ્યું છે અને જેની સાથે જ આપણે જે પ્રકારે એ પણ વાત કરી કે ખાસ અહીંયા આપને માહિતી પણ આપવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે કે આપે કેવો માસ્ક પહેરવો અને તેની સાથે જ કેવા પ્રકારનું માસ્ક કોણ યુઝ કરી શકે છે અને તે સુધી પણ અહીંયા વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આપનું જે માસ્ક આપ જે ગમે ત્યાં ફેંકી રહ્યા છો એ લોકો માટે મુશ્કેલી બની રહ્યું છે, તો આપ એને કેવી રીતે ડિસ્પોઝ કરી શકો છો તે વિશે પણ આપણે જણાવ્યું છે. વધુ માહિતી સેનિટાઈઝર વિશે આપવામાં આવી છે. વધારેમાં વધારે સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ ન કરવો ચોક્કસપણે જરૂરી છે, પરંતુ જો આપની પાસે નજીકમાં સોપ છે તો હાથ ધોવું એ વધારે આપની માટે સારું રહેશે અને તેની સાથે જ મેડિકલ સર્ટિફાઈડ સેનિટાઈઝર અને માસ્ક યુઝ કરશો તો વધારે સારું રહેશે. અને માસ્ક જે આપણે ઘરમાં બનાવીએ છીએ એટલે કપડાના માસ્ક, પરંતુ આપણે જણાવ્યું છે 2 લેયર માસ્ક એ વધારે સારું રહેશે આપની માટે, આપની સેહતની માટે, આપના સારા સ્વાસ્થ્યની માટે. તો આ જાણકારી આપવાનો આપણે એક પ્રયત્ન કર્યો છે કરંટ ટોપિકમાં. ત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.